Go ahead with today's business standard. Yes, sir. Sir, today I read about uh, I read out an merger of two. One of them is Ministries of Public. Sir, just one second. Yes, sir. Ministry of Public Enterprise, and another is Ministry of Public Asset Investment. Both are going to be merged in next 6 months. And I have read another news related to GeoFinance, which has launched its service of loans against digital securities. That's all. Yes, sir. And also, sir, today's newspaper is full with the news of Trump's tariffs. Every in every page, I have read the news about tariff. So see, the news you have read regarding merger of ministries is not ministry. It's for the Department of Public Enterprises. Yes, sir. Sorry, sir. It's a department. Okay, what is Monetary Policy Committee? Sir, Monetary Policy Committee is a committee under the Reserve Bank of India, which regulates the monetary policy in every. It organizes by monthly meeting. In that, it reviews the inflation rate of the country, and after that, it changed the we can say it changed the quantitative measures of monetary policy like repo rate, reverse repo rate, etc. So how it regulates? You mentioned that it regulates. How it regulates? Yes, sir. It regulates like if in it regulates through the quantitative and qualitative measures like it can increase or decrease the repo rate to control the inflation, or also it can perform with the other measures like reverse repo rate, MSF, etc. What is inflation? Sir, inflation is can be measured with respect to the recent month or recent year, like hike in prices of goods and services is called inflation. What does that mean? Sir, for example, the price of onion is in a recent month is uh, 10 rupees, and it becomes in this month is 15 rupees. So it is inflation. It increases with 5 rupees. Okay. So you have read today's topic. Yes, sir, I have prepared for that. What? Sir, today's topic is digital currency and cryptocurrency. So, digital currency refers to any money that exists electronically only, and cryptocurrency is a decentralized digital currency which which uses blockchain technology. These both type of currencies are in trend nowadays, and we have many advantages of these type of currencies. Like if we talk about the advantages of digital currency, so it provides us instant and fast transactions, and it reduces the cost of transactions. And if we talk about the advantages of cryptocurrency, so we can make borderless transactions through it, and also it has more transparency as compared to any other type of currency. But also we have many disadvantages of both type of currency. Like if we talk about the digital currency, so many times we can face failure of transaction, and it is vulnerable to hacking or any type of bug. And if we talk about the disadvantages of cryptocurrency, so it has uh,
like it is not a legal tender in India, so there is no legal protection is provided by the government if we face any type of hacking or spam. So it is a major risk in cryptocurrency. If we conclude all these things, so cryptocurrency and digital currency can be a better option, but for that strict regulations are required because nowadays we are listening everyday new types of scams. That's it, sir. Who invented cryptocurrency? Mm, sorry, sir, I am not aware about it. And name such cryptocurrency, two or three. Sir, the main cryptocurrency is Bitcoin, and some is Euro point. I read about two major cryptocurrencies. Okay, what is blockchain technology? Sir, blockchain technology keeps the information of the each owner of the particular currency. Like today, I have any cryptocurrency, and next day I will give it to other person. So, block in the blockchain technology, the information of mine and the other person is saved. So in this way, we can track the movement of the currency. So in cryptocurrency, this can be tracked. Yes, sir. The cryptocurrency can be tracked. Who told you so? Sir, I have read about it. No, cryptocurrency can never be traced or tracked. Who is the origin? Who is the owner? Who is the redeeming that currency? No one can just do. That's why it is illegal. Means that is not regulated and that is not circulated in India also. That is not approved by central bank. Yes, sir. I will read about it. When RBI was established, Sorry, sir. when RBI was established, Sir, RBI was established in 1934. no. Act is 1934, but established in 1935. Okay, sir. So we read about name-based question and location-based question. So today we are going with Yes, sir. school to graduation-based question. Just let me know from where you have done your schooling, your school name, and you have done your graduation. So what tends you to do after the schooling in that subject and to choose the agriculture background? Yes, sir. So, sir, I have done my schooling from Bright Star Higher Secondary School, Akodia, uh, and with the PCM subject, science subjects, and currently I am pursuing my graduation from Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur, in BTech Agricultural Engineering. Okay, who was Jawaharlal Nehru? Sir, Sri Jawaharlal Nehru was our first Prime Minister of India. Okay, what you know about Jawaharlal Nehru? Did he done something for India or contributed something in constitution? Here, our first Prime Minister Jawaharlal Nehru has made a major policy, sir, which protects India's market from the foreign investors until 1990. It's a major steps of Jawaharlal Nehru
to protect our economy, and Jawaharlal Nehru played an important role in acquiring Jammu and Kashmir. So you said that Jawaharlal Nehru was PM of India. So can tell me the period during which he served the India. Sir, I don't know the exact period for which he was the Prime Minister. Initial year, Sir, 1947, he was Prime Minister. okay, 1950. Sorry, sir, I am not aware about that. So here we have to go in a dynamic way. See, this thing like from schooling to graduation, you have done whatever. Now from graduation to insurance sector, you are coming. So this thing you have to tell means how you will satisfy the panelists with these things. Ki why you want to join after BTech in agriculture engineering to the insurance sector? Why you want to come? Do you have any answer? Sir, I have not prepared the answer yet. Anything, what you think that should be. Sir, uh, I opt BTech in engineering because I belongs to a farming background, and sir, in agriculture and finance are related terms. Like finance is a major portion of agriculture. That's why I want to choose finance. How finance is a major portion of agriculture? Sir, management of finance is a major key factor of agriculture. Like we have to manage our uh, loans and many other things. Like government provides many subsidies, which comes under the finance. Yes, so that thing you have to mention. That is not, of course, the finance. You should just not use the term finance. So that is a financial support by the government, that subsidy, and the loans government providing is a work of that government itself to extend the credit line to the farmers. That is not finance, the term you are using. That is this thing. Yes, sir. So you have to say that financial support the government is providing and elevating the agriculture sector in our country. Why you want to come to bank? Because bank do these things, and also apart from this, I will tell many things in going ahead in lectures. What you have to incorporate all the things into your statement. So till now we have completed from the PI background, name based question, location based question. Which crop is Yes. favorite in your place? Is mostly grown. Sir, in Kharif season, soybean is mostly grown, and in Rabi season, wheat is major crops in our region. Tell me three varieties of wheat. Sir, the very famous variety of wheat is HI 8759, which is generally called Pusa Tejas. The another variety is newly released variety is called HI 1650. It is called Pusa Ojasvi, and another variety is Sri Ram 3303. How much water These are the required major for a varieties. wheat uh, if we have sown the wheat in 1 acres? How much water required for whole life period? Sir, wheat we have to feed 4 to 5 times in the whole period of a season. Okay, suppose there is a well and having a depth of 150 feet. Now you have to tell Yes, sir.
what should be the capacity of motor to draw the water out of well? The capacity can be very depend on that how long how long the field is from the well. But generally, sir, 5 horsepower motor is sufficient to pull the water from the well. For how much depth? Uh, the depths are generally 100 feet. What is pressure head? Sir, pressure head is a term that defines that the how long the pump can push the water, lift the water, how long, how much high, till how much the pump can lift the water. It is called pressure head. Okay, let me know if my screen is visible to you. Yes, sir, it is visible now. Yesterday we ended with regional rural banks shareholding. Now we will go ahead with domestic systematically important bank. As the name suggests, कि RBI released the list of domestic systematically important bank on 2019, and since then RBI is keep on releasing the list. According to this notification, three banks, SBI, ICICI, and HDFC Bank, continued to be identified as domestic systematically important bank. अब ये होते क्या हैं बेसिकली डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए कि अगर कल को कुछ बैंक में लैप्स होता है, अकाउंटिंग लैप्स होता है या कुछ केवाईसी नॉर्म्स में लैप्स होता है और पाया जाता है कि बैंक अच्छे से काम नहीं कर रही, इसके अंदर फॉल्ट्स हैं, समझो ये चीजें अगर आईसीआईसी बैंक में पाई जाती हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर गिरेगा, रेपुटेशन जाएगी मार्केट में उसकी, उसके कस्टमर वहां से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। और क्योंकि ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का टैग लिए हुए है आरबीआई के द्वारा, तो पूरी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, और बड़ी है, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर ये डूबने पाई तो पूरी जीडीपी क्रैश हो जाएगी अपनी। इसलिए ये बैंक इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट इनको रखना पड़ता है। अब हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट होती क्या है? समझिए आपने बैंक खोला है, 100 रुपए डिपॉजिट आया आपके पास 10 लोगों से, आपने 100 रुपए उनसे लिया और 80-80 रुपए आपने 10 लोगों को लोन दे दिया। 1 साल के लिए आपने लोन दे दिया, और कल को वो 10 लोग जिन्होंने डिपॉजिट किया है वो बैंक आते हैं, बोलते हैं हमारा पैसा वापस दो, तो हम कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे पैसा वापस। क्यों? क्योंकि हमने 80 रुपए लोन दे रखा है, 20 रुपए बस अपने पास है पर हेड। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जितनी ज्यादा कैपिटल होगी आपके पास, वही बोला जाता है हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट। और अगर एक साथ पूरा कस्टमर अपना पैसा लेने आए और अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी उनको उनका पैसा वापस दे सकते हैं। अगर कल को आप कस्टमर को बोलते हो हमारे पास पैसा नहीं है, तो बैंक फॉल्ट यानी डिफॉल्ट करती है उस केस में। ऐसी बैंकों को टू बिग टू फेल का स्टेटस दिया जाता है। टू बिग टू फेल है क्या एक्चुअली? अगर इसमें लॉस होता है तो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को हिट करेगा। इसी कारण से ये तीनों बैंक, आप अगर देखोगे इन तीनों बैंक में सबसे ज्यादा ब्रांचेस इनकी हैं। अपार्ट फ्रॉम द ब्रांचेस, सबसे ज्यादा जो अकाउंट्स खोले गए हैं वो एसबीआई के द्वारा खोले गए हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई टॉप 2 बैंक्स में आता है जिसमें सबसे ज्यादा अकाउंट्स हैं। तो अगर ये डूबती है कल को तो सब लोगों का पैसा डूब जाएगा और इकोनॉमी को बैड हिट मिलेगा। नेक्स्ट, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है देखिए,
दैट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। एंड ये 1982 में आया था, शिवरमन कमेटी। तो आपको क्या याद रखना है, सिंस यू आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, यू हैव टू रिमेम्बर दैट ये कब आया था और कमेटी का क्या नाम है। शिवरमन कमेटी 1982। दैट्स ऑल, दैट्स यस ऑल। सर। देन नाबार्ड इज a regulator of फाइनेंशिंग रूरल डेवलपमेंट सेक्टर इन इंडिया। आपको पेड अप कैपिटल नहीं याद रखना है। ये ध्यान रखना है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है, दैट्स ऑल। और इसके बाद कुछ नहीं। फुल फॉर्म, स्टेब्लिशमेंट ईयर, कमेटी नेम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है पूरी। नेक्स्ट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। सो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, ये 1988 में सेटअप हुई थी। अगेन, कमेटी कौन सी है वो याद रखना है। जब भी कोई पूछता है कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, समझो पैनलिस्ट ने पूछा, तो आपको ये जवाब देना है, इट इज अ बैंक suggested by or set up by recommendation of dash committee. That is the proper way to answer. तो इसमें आपको केवल ये याद रखना है कि यस एनएचबी सर। क्या करता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी आप अगर कल को घर बनवा रहे हो और आपको लोन की जरूरत है, तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जाओगे जो आपके हाउसिंग लोन को फाइनेंस करेगा। और वहां जाओगे तो उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको एनएचबी रेगुलेट करता है। ये कुछ साल पहले आरबीआई का ही पार्ट होता था, मतलब आरबीआई के अंदर ही एनएचबी एक अलग से डिपार्टमेंट था। तो आरबीआई पहले ये सब चीजों को रेगुलेट करता था, लेकिन हाल ही में ये दोनों अलग हो गए हैं और आरबीआई अलग काम करता है, एनएचबी अलग काम करता है। तो इसमें सी रंगराजन कमेटी याद रखनी है, हाउसिंग फाइनेंस को रेगुलेट करता है और 1988 में सेटअप हुआ था, दैट्स ऑल। और हाउसिंग या कुछ हाउसिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इनकी चीजें के बारे में कोई भी कुछ पूछे तो एनएचबी का नाम आना चाहिए आपके सामने। यस सर। नाउ कमिंग टू सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने कभी सुना होगा, शेयर मार्केट होता है, शेयर बाजार होती है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, लूज करते हैं। तो उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको सेबी रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड एंटिटी है ये। इसकी कोई कमेटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कमेटी ने रिकमेंड किया था तब ये जाके बनी है। तो आपको केवल याद रखना कि सेबी करता क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी स्टेब्लिश कब हुआ था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेब्लिश कब हुआ था। तो जो स्टेब्लिश हुआ था ये 1988 में स्टेब्लिश हुआ था, और एक्ट जो बना था इसका वो 1992 में बना था। जनरली क्या होता है, लोगों को पहले जैसे आरबीआई का 1934 एक्ट है, बट स्टेब्लिश 1935 में हो रहा है, इसमें उल्टा हुआ था। नाउ अगेन कमिंग टू सिडबी। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया। तो आप नाम से ही पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे उद्योग को लोन कौन देगा, उसको डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जब उसको पैसा देंगे, पैसा देना मतलब लोन देना, वो कैसे होगा, वो सिडबी करेगा हमारा। तो सिडबी 1990 में आया था, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन देती है, यानी फाइनेंस करती है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। क्रेडिट गारंटी देती है, यानी कल को आपका मन हुआ कि मैं एक बिजनेस छोटा सा खोलता हूँ, लेकिन आपको लोन कौन देगा। ना आपके पास कोई कंपनी की सैलरी स्लिप है, यानी आप कहीं काम भी नहीं करते हैं, बस आपके मन में है कि मैं एक धंधा करना चाहता हूँ, एक बिजनेस करना चाहता हूँ, छोटा सा कपड़े की दुकान लगाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को पैसे की जरूरत लगेगी। कौन देगा लोन, कोई नहीं देगा। तब ये सिडबी आती है सामने, और आपका जो प्लान है वो पढ़ती है, सिडबी के ऑफिसर्स पढ़ते हैं। अगर उनको प्लान अच्छा लगता है तो वो गारंटी देते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी, तो वो अपनी ओर से गारंटी देंगे बैंक को कि हम गारंटी देते हैं, अगर ये लोन नहीं चुका पाए तो हम देंगे लोन। तब जाके बैंक आपको लोन देता है। ये मेथड होती है सीडीबी में। नेक्स्ट मुद्रा बैंक, जो हमने काफी डिस्कस कर रखा है। मुद्रा बैंक ऑलरेडी 2015 में लॉन्च हुआ था। इसमें चार फिलहाल लिमिट्स कर दी गई हैं, यानी शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस, जिसमें 50,000 से कम शिशु के अंदर आते हैं, 50,000 1 से 5 लाख तक किशोर के अंदर आते हैं, तरुण के अंदर आते हैं 5 लाख से 10 लाख तक के लोन अमाउंट, और 10 लाख के ऊपर 20 लाख तक आता है तरुण प्लस में। ये ध्यान रखना है कि ये होता क्या है, ये पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और एनबीएफसी
जो कि एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करता है, एमएफआईज को। तो ये ध्यान रखना, ये खुद एक बैंक है जो डायरेक्ट तो नहीं प्रोवाइड करता है किसी को, मतलब किसी पर्सन को जिसको नीड है। वो पहले किसी एनबीएफसी को प्रोवाइड लोन करेगा, फिर वो पर्सन एनबीएफसी से मिलेगा, एनबीएफसी उसको लोन दे देगी, ऐसे काम करता है। एक्सिम बैंक क्या है, फुल फॉर्म याद रखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसा फुल फॉर्म से ही क्लियर है कि ये फॉरेन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होते हैं उसमें हेल्प करता है। यानी कोई एक्सपोर्टर है, अब कल को मैं कोई एक्सपोर्टर बनता हूँ, यानी कोई सामान यहाँ से मैं भेजता हूँ और क्रेडिट में वो सामान है, यानी जो सामने वाला है अमेरिका का बायर है, उसने बोला कि भाई साहब पैसे मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन मैं बाद में आपको जरूर दे दूंगा। अब बाद में दे दूंगा, इसकी गारंटी क्या है? कुछ नहीं है। तो हम उसकी जो ये लाइनिंग रहती है उसका एक फॉर्मेट आता है, यानी वो कागज में लिख के देगा, वो लेटर हेड में मेल के थ्रू देगा। तो उस मेल को हम यहाँ आके सबमिट कर सकते हैं, उसके जो चीजों को यहाँ बता सकते हैं कि ये इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं इसके अगेंस्ट, और ये इसने इतनी चीजें हमसे एक्सपोर्ट कराई है, नहीं हमने दिया है इसको, अब पैसा ये दे नहीं रहा है, अभी इसने बोला है 1 महीने बाद दूंगा, तो आप अभी हमें पैसा दीजिए। तो इसके लिए वो एग्जिम बैंक के पास जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के पास, जो कि इसको क्रेडिट प्रोवाइड करेगा उस समय। नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी सेम काम करता है। इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इन द सेंस, इसका मतलब ये होता है कि अगर सामने वाला पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा, इसको बोलते हैं क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट। जिसमें आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म से ही क्लियर हो जाएगा ये करता क्या है। एक्सपोर्ट क्रेडिट की गारंटी देता है ये कंपनी। नाउ कमिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अमूमन तौर पर क्या होता है, जो बैंक्स होती हैं वो किसको लोन देती हैं? जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वो अगर कुछ ज्यादा लोन मांग रहा है तो हम उसको दे देंगे। क्यों? क्योंकि कल को डिफॉल्ट करता है, उसके पास असेट्स है, हम उसके असेट्स लेंगे और बेच के रिकवरी ले लेंगे। लेकिन अब गरीबों को कौन लोन देगा? गरीबों को इन द सेंस फार्मर को कौन लोन देगा ना? और छोटे इंडस्ट्रीज वालों को लोन कौन देगा जिनके पास कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए? एजुकेशन लोन कौन देगा आपको, अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो लेकिन गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं कोलेटरल में? तो ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि अगर कोई भी बैंक 100 रुपए, एक साल में 100 रुपए लोन के फॉर्म में किसी को देती है, तो 100 में से जो 40 रुपए होगा वो इन सभी सेक्टरों में मिनिमम होना ही होना चाहिए। एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये मैंडेटरी है। 40 से अगर समझिए आपने 39 रुपीज ही लोन दे रखा है इन सभी सेक्टर के अंदर टोटल मिला के, तो पेनल्टी लगती है आपके ऊपर उस केस में। तो आपको 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का लोन होना ही चाहिए। आउट ऑफ 40, एग्रीकल्चर में 18% होना चाहिए 100 में से, माइक्रो इंटरप्राइजेस में 7.5% होना चाहिए, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 10% होना चाहिए उसमें। और सेम चीज एजुकेशन में अप्लीकेबल, आप यहाँ देख सकते हैं, हाउसिंग लोन में भी अप्लीकेबल है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं, और जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर, जो कि कोई बैंक फोकस नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल ही नहीं होते हैं, इसलिए वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं उसको। लेकिन एक्चुअल में प्रायोरिटी बैंक इसको मैंडेटरी बना के दिलवाता है। फिर कुछ होती है नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। तो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंक। लेकिन इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन है कि आपको क्या याद रखना है इसमें, केवल कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? यानी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ये नहीं खोल सकती। ये अगर एक्सेप्ट करेगी तो केवल टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। दो डिपॉजिट्स होती हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होती है, एक टर्म डिपॉजिट होती है। डिमांड डिपॉजिट में
आपने आज पैसे जमा किए, कल आप आके ले जा सकते हैं पैसे। लेकिन टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि कम से कम 1 साल तक पैसा जमा रहेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। मिलेगा तो पेनल्टी लगेगी। तो ये जो एनबीएफसी होती हैं वो केवल टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, वो भी मैक्स टू मैक्स 5 इयर्स की। उससे ज्यादा वो नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं। ये चेक इशू कभी नहीं करती हैं, कभी भी चेक इशू नहीं करती हैं। और अगर आपने इसमें पैसा जमा किया है तो, और कल को एनबीएफसी बंद होती है, तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के थ्रू कवर नहीं होती है। तो ये है एनबीएफसी के कुछ स्मार्ट फीचर्स जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि एज यू आर अवेयर कि इलीगल मीन्स से कुछ मैंने पैसे कमाए हैं, जिसको मैं रोटेट करके ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि ये लेजिटिमेट सोर्स से है, यानी लीगल है। उसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना। लेकिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, इन सब चीजों के अगेंस्ट में केसेस होते हैं, इनकी जांच होती है अंडर दैट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इसको कन्फिस्केट किया जाता है, सीज किया जाता है प्रॉपर्टी को, अगर आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में पार्टिसिपेट किया है तो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब एनआईबीएम में जाने वाले 100 लोगों, अगर 100 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 99 लोगों से पूछा जाएगा ये टर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है कि हम गरीबों तक सेवाएं पहुंचाए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज की हम उन तक पहुंचाए जो कि अछूते हैं इन सर्विस से। यानी गांव के जो लोग हैं जिनका अकाउंट खुला नहीं है, उनको हम बताएं कि बैंक फाइनेंस सर्विसेज होती क्या है, आप इंटरेस्ट कैसे कमा सकते हैं, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड घर घर पहुंचा के उनको लोन बताएं कि आप कैसे ले सकते हैं लोन। तो जो वीकर सेक्शन है, जो लो इनकम ग्रुप है, उसको अफोर्डेबल प्राइसेस पे बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? तो लोग बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खुलाते? क्योंकि वो, उनको पता है मिनिमम रिक्वायर्ड मंथली बैलेंस रहता है लगभग 3,000 4,000 रुपए, जो हम नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो नहीं खुलाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप जीरो अकाउंट भी खुला सकते हो। उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसके अंदर हम 0 रुपीज अकाउंट में रख के भी अपना सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं। उसमें उसका स्लोगन है, मेरा खाता भाग विधाता। और जो डबल किया है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो आपको ये याद नहीं रखना है, या ये याद जरूर रखना है कि 18 से 65 साल के बीच में जो पर्सन्स होते हैं, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ अकाउंट्स आफ्टर 28 अगस्त विल हैव लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज। काइंडली सी इफ दिस लिमिट हैज बीन अपडेटेड। बट प्रधानमंत्री जन धन योजना की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मिनिमम कोई बैलेंस रिक्वायर नहीं है, रुपए का डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है, जिसके कारण इंक्लूजन बढ़ता है। इंक्लूजन बढ़ता है इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा लोग, गरीब तबके के लोग, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी फाइनेंशियली इंक्लूड होती है, यानी फाइनेंशियली शिक्षित होती है, लिटरेट होती है। फिर होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 20 रुपए की प्रीमियम लगती है पर एनम, और 2 लाख का कवरेज मिलता है। यानी आपको अगर एक्सीडेंट हो गया है तो 2 लाख रुपए तक इसमें मिल सकते हैं। एज ब्रैकेट 18 से 70 ईयर्स। इसमें आपको केवल ये याद रखना है कि 20 ईयर के एज में 2 लाख मिलता है। और ये है क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 330 रुपए पर एनम। तो आपको ये प्रीमियम है ना, वो कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के पूरे फीचर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के एक दो फीचर, और ये इनके फीचर नहीं, केवल इनके नाम, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में क्या है, 1,000 से 5,000 रुपए के बीच में आपको मिलेंगे 60 साल की एज में। आप इसमें कब कब एंट्री ले सकते हैं? 18 से 40 साल के बीच में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें पैसे जमा कर सकते हैं।
उसके बाद जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो मिनिमम 1000 पर मंथ तो मिलेगा आपको पेंशन, और मैक्सिमम 5000 मिलता है। अब किसको 1000 मिलेगा, किसको 5000 मिलेगा, ये इस बात पे डिसाइड करता है कि किसने कितना पैसा जमा किया है। तो बस इसमें ये याद रखना है कि भाई पेंशन योजना है, एक जीवन ज्योति बीमा योजना है, और दो अलग स्कीम्स है। दैट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है कुछ जो आरबीआई ने क्रिएट किया है, जो कि 2000 करोड़ रुपए का है, जो टोटली इसकी सर्विसेज के लिए बनाया है कि बैंकिंग सर्विसेज गांव गांव तक पहुंचे, गरीब लोगों तक पहुंचे, जो अशिक्षित हैं जिनको पता नहीं है कि सर्विसेज क्या होती हैं उन तक पहुंचे। इसको मेंटेन कौन करता है, इसको नाबार्ड मेंटेन करता है, जो कि पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इस फंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 40% स्टेक है, आरबीआई का 40% और नाबार्ड का 20%। डीमैट अकाउंट से के बारे में हम कल से चर्चा करेंगे। एनी डाउट यू हैव टिल नाउ, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? No, sir, everything is clear. व्हाट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना? Sir, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, we can get opened our zero balance account. That means there is no minimum amount is required to keep in the account. हु रिकमेंडेड एनएचबी? NHB is C. Rangaranjan, Mr. Dr. श्रीरंगराजन C. पढ़े? Rangaranjan. Yes, sir, C. Rangarajan. व्हाट इज एक्सिम बैंक? Sir, I forgot it, but it is related to export. सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ना इट इज। Yes, sir. टेल मी फीचर ऑफ एनबीएफसी। Sir, I have to read about it. So NBFC is basically we cannot accept demand deposit. We will accept only term deposit. We cannot issue the check on our behalf, and we will not insure our deposits. For example, कल को एनबीएफसी डूबती है कोई नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, तो मैं पैसा नहीं दूंगा Yes, वापस, sir. यानी कंज्यूमर वो पैसा पाएगा ही नहीं। लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं होता है। बैंक अगर डूबती है तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है, वो उसको मिल जाएगा। Yes, sir. What? Tell me about NBFC. Sir, NBFC accept only term deposit, and there is no coverage if this institute is got defaulted, so we will not get our money by the government because there is no insurance of it. That's all for today. Thanks for joining. Any doubt you have, you can WhatsApp me. Thanks for joining. And Yes, sir. tomorrow's is a GST. GST topic is for. Yes, sir.